Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. Now, this is our part 7 of our chapter number 2, reproduction, sexual reproduction in flowering plants. So, in previous lecture, we have discussed about pollen pistil interaction. Okay, then we have discussed about the double fertilization. Okay, as I told, double fertilization is very important question. Okay, exam point of view. Now, in this lecture we will going to study our post fertilization events. Okay, post fertilization meaning after fertilization. We have seen until the fertilization तक हमने सब कुछ देख लिया. अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है फ्लावर्स में, रिप्रोडक्शन में आगे क्या होता है, वी विल सी. ओके, सो फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into the seeds and ovary into the fruit are collectively called as the post fertilization event. So here endosperm will be developed, embryo will be developed. Okay, endosperm meaning the outer part of embryo. Okay, so maturation of ovules into the seed, as I told, ovule become the seed finally and ovary become the fruit finally. So these all events are collectively termed as post fertilization events. Okay, now endosperm, first of all we will discuss about endosperm. So endosperm development proceeds embryo development. Now endosperm will be finally develop in the embryo. Now the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. So here the primary endosperm cell will divide. Okay, divide meaning cell division occur and repeatedly and form a triploid endosperm tissue. Here not haploid, not diploid, but here triploid. Okay, because the ploidy is here 3 chromosome numbers, 3 set of chromosomes. Now the cells of this tissue are filled with the reserve food materials. Okay, so these cells are food storage. Okay, reserve meaning to store, and are used to the nutrition of the developing embryo. Okay, so what is the role of endosperm here? So जो endosperm होगा वो nutrition provide करेगा जो embryo develop हो रहा है उसमें. Okay, so embryo अंदर की साइड develop हो रहा है and endosperm is outer. So endosperm will give the will provide the nutrition because इसके पास फूड है, स्टोरेज है, इसके पास स्टोरेज है. ठीक है, डेट्स वाई. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN undergoes the successive nuclear divisions. Successive meaning one after another. Okay, so nuclear divisions will be there, only division of the nucleus. So in most type of endosperm development the pen already we have discussed PEN. Okay, primary endosperm nucleus. So PEN undergoes the successive nuclear division to give rise to the free nuclei. Nuclei meaning plural form of nucleus. There are nucleus, so many, more than one. Okay, here. So this stage of the endosperm development is called as free nuclear endosperm. Here this stage, which stage? This stage. Okay, this is endosperm development. The PEN undergoes the successive nuclear division. ओके, यहाँ पर जब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा, पेन जो है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड विल बी गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई. सो दिस स्टेज of endosperm development is called as free nuclear endosperm. Subsequently cell wall formation occurs and the endosperm becomes the cellular. Here cell wall अभी क्या होगा, धीरे धीरे सेल वॉल बनेगी उसकी. ठीक है, न्यूक्लियस बन गया, धीरे धीरे उसकी सेल वॉल बनेगी एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर. सो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो अभी सेल्यूलर, उसका जो रूप है सेल का रूप वो अभी ले लेगा. So the number of free nuclei formed before the cellularization varies greatly here. Okay, so number of free nuclei जो हमने पीछे देखा था कि फ्री न्यूक्लाई जनरेट हो रहे हैं फाइनली, तो ये जो नंबर है वो फॉर्म बिफोर द सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. ये जो नंबर है न्यूक्लाई के वो वेरी कर सकते हैं. वेरी करना मीनिंग चेंजिंग विल बी देयर. सो वो चेंज नंबर में चेंज होता रहेगा जब तक ये सेल्यूलराइजेशन होता है तब तक. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with. Okay, हमने नारियल का पानी तो देखा ही है. So is nothing but free nuclear endosperm.
सो कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट डेट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो ये हम कोकोनट वाटर जो देख रहे हैं वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है एक प्रकार का, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ द 1000 ऑफ न्यूक्लियाई, वो किससे बना है, जो हम नारियल खाते हैं वो बना किससे, अंदर का जो लेयर होता है। सो मेड अप ऑफ द 1000 ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल, और उसके आजू बाजू जो वाइट कलर का जो होता है, ठीक है, वो पार्ट भी हम खाते हैं। सो सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। Now endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, for example pea, groundnut, bean। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल पी है, पी मीनिंग यहाँ पर जो मटर है, मटर के दाने देखे होंगे आपने। सो डेट विल बी होल सीड, यू कैन सी embryo, whole embryo, and endosperm is differentiated, not here differentiated, but endosperm completely consumed by this embryo। So groundnut also we have seen, beans also we have seen। okay, so एक बार आप घर पे देखना ग्राउंडनट, बीन्स, उसमें जो एंडोस्पर्म है वो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं मिलेगा, कंप्लीट डेवलपिंग एम्ब्रियो ही दिखेगा बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इज इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। ये सीड बनना उसका मैच्योर, मतलब जो मैच्योर सीड यहाँ पर हो रहा है वो कंडीशन कंप्लीट चालू रहेगी, कंटिन्यू, डेट विल बी कंटिन्यू। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट, ठीक है। सो ये जो एंडोस्पर्म है वो कंटिन्यू मैच्योर सीड में होता रहेगा, तो उसका एग्जाम्पल कोकोनट है। एंड वो एंडोस्पर्म पूरा एम्ब्रियो के अंदर आ गया, उसका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। Split open some seed of castor, peas, beans, groundnut, fruits of coconuts and look for the endosperm in each case। So you have to done this experiment at your home। ओके, ये सब आपको घर पे भी मिल सकता है, कैस्टर है, पीस है, बीन्स भी आपको मिलेंगे, ग्राउंडनट मिलेंगे, फ्रूट्स ऑफ कोकोनट। ओके, सो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहना। आप साइंस स्टूडेंट हो, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, ओके, आप ये सब घर पे भी कर सकते हो। एंड यू विल ऑब्जर्व and you will observe the amazing nature, okay, and this all things, this all fundamentals, okay, so this is very interesting। now here our endosperm is completed and here embryo। so okay, now finally embryo। so embryo develops at the micropylar end of the embryo sac। okay, what is micropylar end? We have already discussed about micropylar end, okay, in that structure, keep in mind। Now most zygotes divide only after the certain amount of endosperm is formed। now zygote will be formed, okay, as we know two gametes will be combined and make the zygote। so zygote will divide only after the certain amount of endosperm is formed। जब endosperm थोड़ा बहुत फॉर्म हुआ होगा तभी ये zygote डिवाइड होगा, and zygote will finally give rise to the embryo। This is an adaptation to provide the assured nutrition to the developing embryo। because ये सब क्यों हो रहा है, ओके, जाइगोट डिवाइड क्यों हो रहा है कि एंडोस्पर्म है, क्योंकि एंडोस्पर्म का जो न्यूट्रिशन, ओके, दिस इज द एडेप्टेशन, ये एक प्रकार की एडेप्टेशन हो गई, हैबिट है उसकी, टू प्रोवाइड द एस्योर्ड न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन देना कंपलसरी है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, डेट्स वाई। सो दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, the early stages of the embryo development is called as embryogenin, are the similar in both monocotyledons and dicotyledons। okay, so here as we know flowering plants के two further classes है, monocotyledons and dicotyledons। so here as we know seeds will different in both, okay, monocotyledon meaning one monocot is there and dicot is there, okay, so there is a large difference, but the early stages of the embryo development is similar in both। now figure 2.13 depicts the stages of embryogeny in the dicotyledons embryo। okay, so you can see the figure in our textbook। now the zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular heart shaped and mature embryo will be there। here the further development of zygote, ओके, जाइगोट अपने को मालूम है जाइगोट क्या है, ठीक है, दो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, लेकिन अब धीरे धीरे उसको प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द
ओके, यू कैन सी हियर कोटिलीडॉन्स, ये देखो कैसे कोटिलीडॉन्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाउ हियर अ टिपिकल डाइकोटिलीडॉन्स एम्ब्रियो इन फिगर 2.14a मैंने जो अभी दिखाई कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड द टू कोटिलीडॉन्स। ओके, हमने देखी ये टू कोटिलीडॉन्स इज देयर एंड वन एक्सिस इज देयर। Okay, consist of an embryonal axis and two cotyledons. So the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle. Okay, epicotyle भी हम बोलते हैं उसको, ठीक है। So ये portion of the embryonal axis above the level of cotyledons, यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये cotyledons है, यहाँ के ऊपर का जो ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। So that is called as epicotyle and which terminate with the plumal or stem tip here. Sorry, here, okay, here you can see plumal, here this is the end, okay, plumal end. Now the cylindrical portion below the level of cotyledon is the hypocotyle that terminates at its lower end. ये इसके नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है, हाइपोकोटिल है, यहाँ पर प्लूमुल है, ये सब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसके जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स, one end, second end, there is a another names for different names for different stages. Okay, so here एपिकोट हमारा हो गया, ठीक है, एपिकोटल। नाउ हाइपोकोटिल किसको, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन मैंने जो बताया बिलो द लेवल ऑफ कोटिलीडॉन्स एंड दे टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड द रेडिकल और रूट टिप, उसको दूसरा जो नाम है रेडिकल एंड रूट टिप, ठीक है, ये यहाँ से लोअर लेवल में है, ठीक है, कोटिलीडॉन्स के लोअर लेवल में है। नाउ द रूट टिप इज कवर विथ द रूट कैप, जो रूट टिप है उसको कवर कौन करेगा, रूट कैप करेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस डायग्राम। नाउ embryos of monocotyledons possess only the one cotyledon, as we know monocot meaning only one, mono meaning one, di meaning two. So in the grass family the cotyledon is called the scutellum, that is situated towards the one side is lateral side of the embryonal axis. Okay, in the family of grasses. Okay, so the cotyledon is called as scutellum. Okay, very important MCQ, and that is situated towards the one side, only one side, whether it is left or right, but it is called as lateral of the embryonal axis. Now at its lower end the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in the undifferentiated sheath and called as coleorhiza. This is the now and okay, we have here seen the end, lower end. Okay, लोअर एंड पे क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट है रेडिकल एंड रूट कैप, वो एनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीथ, वो एनक्लोज है मतलब उसके ऊपर लेयर होगा, इज एन डिफरेंशिएटेड सेल मीनिंग वो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंशिएटेड हुए हैं, बट हियर अनडिफरेंशिएटेड मीनिंग ऑल आर द सेम, सो अनडिफरेंशिएटेड शीथ इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा. Okay, keep in mind this word. Now the portion of the embryonal axis above the level of attachment, keep in mind embryonal axis का जो portion है above the level of attachment of the scutellum is called as epicotyle. Okay, ये हम उसकी बात कर रहे हैं डाइकोटिलीडोन की, सॉरी वन मोनोकोटिलीडोन की, हमने डाइकोटिलीडोन तो पहले देख लिया. सो हियर दिस इज ओके, यू कैन सी हियर कोलियोराइजा आप देख रहे हो, यहाँ पर रूट कैप है. Okay, then you will see here scutellum. Okay, scutellum. So here what you mean by this attachment? Okay, so the portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called as epicotyle. So this is our epicotyle. ये जो scutellum है इसका ये जहाँ पर भी attach हुआ है उसकी बात कर रहे हैं. Now epicotyle has a shoot apex. epicotyle के पास क्या होगा, shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structure, the called as coleoptile. Okay, here this is coleoptile. Okay, you can see here one and here this is two. Okay, so this is and here is the shoot apex. Okay, here you can see shoot apex. shoot यहीं तक है, उसकी apex meaning सबसे ऊपर वाला हिस्सा. Now epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structure. Okay, remember guys, this is enclosed in the hollow foliar structure. Here hollow meaning जो empty होगा, मतलब पूरा
भरा हुआ नहीं होगा, होलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलियोप्टाइल। ओके हियर दिस इज, देखो ये होलो होलो, इसको होलो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा मतलब इसके बीच में कोई और चीज़ नहीं है, डेट्स वाई होलो मटेरियल है। नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी सीड। ओके, so in angiosperm the seed is the final product of the sexual reproduction। ओके हमको रिप्रोडक्शन में एंड में क्या चाहिए, सीड चाहिए यहाँ पर इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो द सीड इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। सो इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है, एज वी नो ओव्यूल्स में ओव्यूल विल बी फॉर्म्ड इन द सीड, सो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीड। नाउ सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। एज वी नो हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर सीड तो हमको देखने को मिलते ही है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, मैंगो एट्सेट्रा फ्रूट्स। सो अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट। सीड के पास क्या होता है, उसका सीड का कोट होता है, आउटर लेयर। फिर क्या होता है, कोटिलीडन होता है। डेट्स वाई द टू टाइप्स, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। एंड द एम्ब्रियो एक्सिस विल बी देयर। एम्ब्रियो एक्सिस भी वहाँ पर होती है सीड के अंदर। हमने कई बार देखी होगी, जब प्रैक्टिकली यू विल डेफिनेटली यू विल स्टडी अबाउट दिस। नाउ द कोटिलीडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। वो कैसे होंगे, जनरली थिक होंगे एंड द सिंपल स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो यहाँ पर। सो कोटिलीडन्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट मोनोकोटिलीडन इज आवर कॉर्न। ओके, कॉर्न इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोकोटिलीडन। सो द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। उसके अंदर हमारा क्या है, फूड स्टोर हुआ है, एक फूड मटीरियल है। डेट्स वाई द स्ट्रक्चर इज स्वॉलन एंड थिक, जनरली थिक। सो मैच्योर सीड्स मे बी नॉन अल्बुमिनस और एक्स अल्बुमिनस। जो मैच्योर सीड हो जाएंगे उसमें अल्बुमिनस नहीं भी होगा और उसके पहले का जो प्रोसीजर है वहीं तक ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो हियर यू कैन सी हियर कोटिलीडन्स किसको बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज बीन। ओके, किडनी बीन स्ट्रक्चर, कीप इन माइंड, इमेजिन। सो दिस इज वन कोटिलीडन एंड दिस इज अनदर कोटिलीडन। सो ओके, दिस इज बाइकोटिलीडन, एग्जांपल ऑफ बाइकोटिलीडन्स। Okay, now from the lateral view this is the micropyle. Okay, micropylar end and this is micropyle. You can see here seed coat. ये जो सीड है, सीड का ये कोट आप देख सकते हो। and this is endosperm. Endosperm is the outer layer. Okay, ये जो कोटिलीडन है उसके बाहर का जो भाग है वो है। and then hypocotyl. Okay, root axis, here you can see root axis. Okay, here shoot apical meristem, this is shoot apical meristem tissue. Okay, and this is root tip, this is root tip. Okay, so this is about the seed. Okay, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो सीड कोट, कोटिलीडन, shoot apical meristem, hypocotyl root axis. Okay, so this is the structure of seed. Okay, now non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is the completely consumed during the embryo development. उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होगा बिकॉज जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो। ओके, फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, एज आई टोल्ड अर्लियर। नाउ एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। जो एल्ब्यूमिनस सीड है उसके पास थोड़ा पार्ट एंडोस्पर्म का होता है, एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बिकॉज वो जो एम्ब्रियो है वो थोड़ा बहुत भी बाकी बचा है, क्योंकि सब सारा का सारा यूज़ नहीं हुआ है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, हमने पहले भी ये सब देखा है, कोकोनट का जो भी देखा है हमने फ्रूट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अल्बुमिनस एंड अल्बुमिनस सीड। नाउ ओकेशनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। सो यहाँ पर कुछ सीड ऐसे भी हैं कि जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मीनिंग जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, ब्लैक पेपर, एंड द बीट रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। वो भी उनमें भी ये जो अल्बुमिनस सीड उनको भी ये थोड़े बहुत उसमें पार्ट होता है। दिस रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। ये जो परसिस्टेंट न्यूसेलस का टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पेरिस्पर्म बोलेंगे। नाउ इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स हार्डन एज द टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स।
सो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होगा, ठीक है, हमने पहले भी ये पिक्चर में देखा हुआ है, डायग्राम में देखा हुआ है। ओके, सो ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, वो कैसा, थोड़ा सा जो सीड कोट होगा वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होगा बिकॉज वो हार्ड है, ठीक है। सो वैसे ही इंटेग्यूमेंट जो है ओव्यूल का वो भी हार्ड होगा। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज द स्मॉल पोर इन द सीड कोट, जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे माइक्रोपाइल होगा। सो माइक्रोपाइल विल बी स्मॉल पोर की तरह दिखेगा इन द सीड कोट, सीड कोट में थोड़ा सा पोर टाइप का आपको दिखेगा, पोर मीनिंग द स्मॉल होल, लिटल होल। नाउ दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन, बिकॉज वहाँ पर स्मॉल पोर क्यों है, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। अभी सीड का जब भी जर्मिनेशन होगा तब उसको ऑक्सीजन एंड वाटर चाहिए, तो वो इस पोर में से इस पोर में से ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो ये स्पोर कहाँ पर है, सीड के कोट के अंदर है। नाउ एज द सीड मैच्योर, सीड जब भी मैच्योर होगा इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड द सीड बिकम द रिलेटिवली ड्राई, 10 to 50% moisture by the mass. Okay, so this is very important thing. After the maturing of seed and during the maturation of seed, the water content will be lesser, okay, and reduced, and seed will become the relatively dry. अभी this is the obvious thing. जैसे वाटर कम हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली ड्राई हो जाएगा, बट 10 to 15% ओनली मॉइस्चर इज देयर बाय द मास, उसका जो भी मास होगा उसमें से 10 to 15% is only moisture. Okay, so this is the picture. Now the general metabolic activity of the embryo slow down. यहाँ पर क्या होगा, जब जब सीड मैच्योर हो रहा है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ऑफ द एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड एज डोरमेंसी, ओके, और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, सो दिस ऑल द सिचुएशन आर कॉल्ड एज फेवरेबल। फेवरेबल मतलब उसको पसंद आए वैसी कंडीशन है ये, ओके, ये सब। एडिक्वेट मॉइस्चर मतलब उसको कंप्लीट पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, सो दे विल जर्मिनेट, वो तभी जर्मिनेट होंगे। एंड अगर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उसको बोलते हैं डोरमेंसी, इनएक्टिविटी, वो तभी इनएक्टिव होंगे, देयर विल बी इनएक्टिविटी फॉर द सीड, सो दैट इज कॉल्ड एज डोरमेंसी पीरियड। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू द सीड, एज वी नो द ओवरी विल डेवलप इनटू अ फ्रूट, ओवरी जो होगी वो फ्रूट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, और वी कैन से the transformation of ovule into the seed and ovary into the fruit proceeds the simultaneously. So what do you mean by simultaneously? Simultaneously meaning एक साथ हो रहा है, ये दोनों प्रोसीजर जो है सिमिलरली एक ही टाइम पे ये दोनों हो रहा है। ओव्यूल सीड में भी बन रहा है एंड जो ओवरी है वो फ्रूट में भी बन रही है, दोनों एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। Okay guys, so in next part we will continue this topic and probably our chapter will be finished in next part. Okay, so Jai Swaminarayan.